Dear students, today we are going to start chapter 1 differentiation. Miscellaneous exercise 1. Set 2, question number 7. Now see question number 7 first. If y square equals a square cos square x plus b square sin square x, so that y plus d2y upon dx2 equals a square b square upon y cube. So dear students, first you should understand the question and what you have to prove. Your question is y square equal to a square cos square x plus b square sin square x, but you have to prove that y plus d2y upon dx2 equals a square b square upon y cube. So what does it mean? This means you have to find the second derivative in this question, and a square into b square. You want a square into b square upon y cube. This is the main important term. And now just think, here a square cos square x plus b square sin square x, and in the proof only y plus d2y upon dx2 equals a square b square upon y cube. This means we have to eliminate cos square x and sin square x in the second derivative or in the first derivative. Now let us try for the proof. Since y square equal to a square cos square x plus b square sin square x, let it be equation first. Differentiating with respect to x. So we see that derivative of y square is 2y into dy by dx. Yes, what is derivative of y square? 2y into dy upon dx equals, what is the derivative of a square into cos square x? Here a square is constant and cos square x is the variable term. So a square is constant, so we should write a square as it is here. A square into cos square x, so we should write here a square as it is here. Now think about what is d by dx of cos square x. So d by dx of cos square x is, consider it is cos x the whole square. Cos square x means cos x whole square. So d by dx of cos x whole square equal to 2 cos x by chain rule into d by dx of cos x is minus sin x. So simply you can say derivative of cos square x equal to 2 cos x into minus sin x. See once again, cos x the whole square, right? And using the formula d by dx of x raised to n, which is n into x raised to n minus 1. Okay, so this will be 2 cos x, but it is not x. So by composite function or by chain rule, into d by dx of cos x becomes minus sin x. That is derivative of a square cos square x equals a square into 2 cos x into minus sin x. Clear now? Okay. Plus d by dx of b square sin square x. So derivative of b square sin square x is what? Here b square is constant. So your variable term is sin square x. So we write b square as it is here. Okay. Now d by dx of sin square x, so consider as sin x the whole square. Okay. So derivative of sin x the whole square equal to 2 sin x into d by dx of sin x is cos x. Like as first term, the derivative of d by dx of b square sin square x is b square into 2 sin x into cos x. Now 2i into dy by dx equal, it is a square into 2 cos x into minus sin x. So we write here minus sin first. So this will be minus a square, and 2 cos x into sin x becomes sin 2x. Okay, because it is a turbo formula. So 2 cos x into sin x equal to sin 2x plus b square, and 2 sin x into cos x here, it is also sin 2x. Therefore 2i into dy by dx equal b square
minus a square into sine 2x. How it is possible? So taking sine 2x common, right? So this will be minus a square plus b square, and minus a square plus b square simply written as b square minus a square. Or you can say take sine 2x common and rearranging minus a square plus b square as minus a square plus b square as b square minus a square into sine 2x, and let it be equation number 2. Continue. Therefore 2y into dy by dx equal b square minus a square, right? Sine 2x is 2 sin x cos x, which is already here 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. So we write it again because we need. So 2i into dy by dx equal b square minus a square into 2 sin x into cos x. So 2 going by 2, 2 cancelled. We are cancelling here, क्योंकि देखो sin 2x हमने यहाँ से कन्वर्ट करके लिया था, राइट? तो sin 2x को अगर हम उसको प्रीवियस फॉर्म में वापस से वैसा लिखते हैं तो क्या होगा? 2 sin x into cos x. तो हम इसको 2 and 2 को कैंसिल कर देते हैं. Why? बिकॉज वी नीड दिस टर्म. हमें y into dy by dx की वैल्यू चाहिए इसके लिए. क्यों ऐसा किया हमने? बिकॉज वी वांट value of y into dy by dx. So y into dy by dx equal b square minus a square into sin x into cos x, and let it be equation number 3. तो ये अच्छे से इक्वेशन नंबर 1 मीन्स इट इज मेन क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन 2 को हमने लिया है, देखो 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x के फॉर्म में, और y इंटू डी वाई जस्ट उसको एक्सपेंड कर दिया साइन 2x को, जैसा प्रीवियस था वैसा लिखा, और इसके 2 गेट कैंसल्ड. तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को, क्योंकि हमें देखो प्रूफ क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, राइट? t2i अपॉन dx2 फाइंड करना है. तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 2. दिस 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x. तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें टर्म क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पर है अपना 2y, राइट? तो हम 2 को यहाँ बाहर रख लेते हैं, सबसे बाहर 2. y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. कौन सा फार्मूला? प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी. तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, चलो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, या रिपीट करा देता हूँ मैं. u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये हो गया फार्मूला. तो इसको हमने u लिया और इसको v, और 2 है कांस्टेंट, उसको रखा है बाहर, ठीक? तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स सेकंड डेरिवेटिव, मीन्स y इंटू डी टू आई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y. तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. तो यहाँ क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखने से अच्छा है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. अब ये ध्यान देना कि ये है y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, मीन्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दे आर नॉट इक्वल. क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं. इन द राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिफरेंशिएशन में लिया है, राइट? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट. वी राइट एज इट इज. देखो सबसे मेन बात, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होके आता है तो एज इट इज वहाँ पर सेफ रहता है. वैसे ही उसको डाउन कर लेना है, लिख लेना है. सिर्फ डेरिवेटिव किसका फाइंड करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x. अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2 बाई चेन रूल. तो इसको कंटिन्यू अपना एडजस्टमेंट करना है जब तक उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो जाता. तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू 2. अब ये 2 एंड 2 गेट
कैंसल्ड, दोनों साइड से 2 हमने कट कर दिया। और यू कैन से डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो भी चलेगा। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अब उसको देखो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि हमें कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को एलिमिनेट करना। तो इस क्वेश्चन में इसको एलिमिनेट करना इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स में आए हैं और दोनों के साथ कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ये भी अलग है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको आराम से देखो। यहाँ पर हमें क्या मिला, y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x। तो मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देखो ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट है, यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वी राइट हियर इक्वल्स वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x एज इट इज। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इनको ओपन करके भी कोई फायदा नहीं है, उसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया कि मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जस्ट ओपन द ब्रैकेट इन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हमने मल्टीप्लाइंग वाई स्क्वायर के बाद उसका ब्रैकेट ओपन कर लिया है। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब भी अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें कोई भी इसमें टर्म ऐसा नहीं मिलेगा जिससे cos 2x यहाँ पर एलिमिनेट हो सके, नॉट पॉसिबल। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एडिंग y रेज टू 4, यहाँ पर देखो एडिंग y रेज टू 4 ऑन बोथ साइड्स, तो y रेज टू 4 को ऐड कर लेते हैं और y रेज टू 4 को ऐड करने के बाद हमें जो टर्म मिलेगा उसको बहुत ही केयरफुल्ली अच्छे से समझो, एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब जो यहाँ पर मैं भी बता दूँ, अब यहाँ से जो स्टेप आ रहा है क्वेश्चन का, अगले 3 स्टेप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे समझने के लिए। अगर ये 3 स्टेप्स जिसको अच्छे से क्लियर हो गए, मीन्स क्वेश्चन इज क्लियर, उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही अटेंटिव होकर के बैठो, एकदम केयरफुल्ली सुनो क्वेश्चन को। सी दिस y क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एज इट इज, y क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई रेज टू 4, मीन्स एडिंग y रेज टू 4 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हमने ऐड किया है y रेज टू 4 और यहाँ देखो एडिंग y रेज टू 4 दिस साइड एंड रिमेनिंग टर्म y क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई रेज टू 4, ये हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, दोनों साइड ऐड किया। और यहाँ जो प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और अपना जो टर्म पहले था प्रीवियस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x, वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, नो चेंज इन दिस टर्म। सो होल इक्वेशन बिकम्स y क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई रेज टू 4 इक्वल वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4, एंड यू हैव टू राइट एडिंग y रेज टू 4 ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं इसमें, अब इसको थोड़ा सा केवल रीअरेंज वापस करते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा और किस तरह से होगा। तो y क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एज इट इज वाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई रेज टू 4, क्योंकि ये टर्म्स अभी हमें सेफ रखना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं चेंजेस की। नाउ वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये क्या है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अब इसको देखने के लिए हम लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब ही चलोगे, इक्वेशन नंबर 1 में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन था वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
एज इट इज, नो चेंज इन दिस वैल्यू बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अब इसके बाद cos 2x की फार्मूला हमें किस फॉर्म में अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर क्या मिला है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्वेश्चन ही है दिस इज वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज इंटू cos 2x इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? ओके। नाउ माइनस वाई स्क्वायर, फिर से यहाँ पर वाई स्क्वायर आया, लेकिन वाई स्क्वायर के साथ टर्म क्या है, देखो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस तरह से रीड करें कि वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो भी तो बात एक ही है ना, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी उसको दिखाता हूँ कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमने जो यहाँ पर इक्वेशन बनाया था और उसको सेफ रखा था, वो वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 से। देखो इक्वेशन नंबर 3, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर टू टू कैंसिल हो गया था, तो यही है वैल्यू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और हमारे इक्वेशन में क्या है, स्क्वायर ऑफ द टर्म y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए, तो हमें राइट हैंड साइड का इस पूरे का स्क्वायर वहाँ पर लिखना होगा। क्लियर? तो चलो फिर चलते हैं अपने कंटिन्यूएशन स्टेप में, और वो वैल्यू हमारी पास यहाँ पर है, देखो यही है वैल्यू y, हमने क्या बताया अभी, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और जो यहाँ पर ये पार्ट लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास बचता है लास्ट टर्म y रेज टू 4, तो y रेज टू 4 में क्या है, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू फिर से वही वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर का वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर है, एंड होल स्क्वायर हियर बिकॉज इट इज वाई रेज टू 4, तो दिस इज वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, so we write here y square and whole square here plus a square cos square x plus b square sin square x the whole square, और ये लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सी वंस अगेन, देखो दिस वैल्यू y square फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज b square minus a square as it is into cos square x minus sin square x value of cos 2x which is formula, this is b square minus a square into sin x cos x the whole square, this is value of y into dy by dx और होल स्क्वायर है इसके लिए स्क्वायर यहाँ पर लगा रहेगा, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 प्लस वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हियर एंड होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ वाई रेज टू 4, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसमें इक्वेशन 1 और 3 का यूज किया, सो वी राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। क्लियर है यहाँ तक? अब और हाँ, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इस तरफ क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया गया, बिकॉज वी नीड वाई रेज टू 4, हमें ये चाहिए प्रूफ में वाई क्यूब, तो हमारे पास देखो वाई क्यूब यहाँ से मिल सकता है और वाई क्यूब इसमें भी कॉमन, तो वाई क्यूब दोनों में कॉमन हो जाएगा, फिर हमें वाई प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मिलेगा, राइट। तो अब समझ गए होगे कि क्या करना है हमको, तो अब ये पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करना, पूरे ब्रैकेट को ओपन करके हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब आगे देखो क्या करना है इसको, ये स्टेप क्लियर हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज cos 2x, this is y dy by dx whole square and this is y square whole square. Now left hand side rearranging we get y raised to 4 plus y cube into d2y upon dx2, बस जस्ट फर्स्ट जैसे यहाँ पर है a प्लस बी, हमने यहाँ b प्लस ए लिख दिया, जस्ट रीअरेंज किया, y raised to 4 plus y cube d2y upon dx2 इक्वल, नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, ये तीनों ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई स्टूडेंट को अगर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पहले फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो इनका आंसर आएगा और उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तीनों ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या टर्म आने वाला है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्योंकि उसको एज अ रफ वर्क करके देख लो और यहाँ पर फिर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो वी मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तीनों ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा। फिर से देखो, देयर फोर वाई रेज टू फोर, लेफ्ट हैंड साइड रीअरेंजिंग वेट, वाई रेज टू फोर प्लस वाई क्यूब डी टू वाई पान डी एक्स टू इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस रेज टू फोर एक्स। देखो ए स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ देखो, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस रेज टू फोर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू फोर एक्स प्लस बी रेज टू फोर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी रेज टू फोर साइन रेज टू फोर एक्स माइनस ए रेज टू फोर कॉस रेज टू फोर एक्स माइनस ये ए रेज टू फोर कॉस रेज टू फोर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन माइनस ए रेज टू फोर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेज टू फोर और माइनस साइन यहाँ पर है तो वी राइट हियर माइनस, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस रेज टू फोर। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सभी टर्म्स मिलते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर भी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कर सकते हो। तब दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, चलो माइनस ए रेज टू फोर कॉस रेज टू फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये टर्म हमने माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस किया तो क्या मिला, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू अपने पास दूसरा टर्म क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद प्लस ए रेज टू फोर, आगे का टर्म अब देखते हैं, ए रेज टू फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए रेज टू फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज टू फोर एक्स माइनस, अब ये जो अभी जो ब्रैकेट ये माइनस साइन यहाँ पर है, ये माइनस साइन का टर्म यहाँ से चालू हो रहा है। तो अभी ये ब्रैकेट में क्या है, इसका होल स्क्वायर। तो इसके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटू, देखो स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस टर्म स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ऑल्सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर इज बी रेज टू फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए रेज टू फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी क्या है बी रेज टू फोर प्लस ए रेज टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। तो ये ब्रैकेट इतने का होल स्क्वायर हियर फ्रॉम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यहाँ तक हो गया, प्लस ये पार्ट प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब इसके लिए ए रेज टू फोर कॉस रेज टू फोर एक्स प्लस बी रेज टू फोर साइन रेज टू फोर एक्स प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म यहाँ पर रहा, ये हमारे सभी ब्रैकेट्स का एक्सपेंशन हो गया और फर्स्ट थ्री ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया। मैं फिर से इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट, मतलब ये पूरा तीनों एक ही टर्म है, ये तीनों का मल्टीप्लाई अपना है फ्रॉम हियर टू ये स्टेप सेकंड स्टेप और यहाँ पर ये थर्ड, मतलब फर्स्ट थ्री लाइन्स फर्स्ट थ्री रोज ये मल्टीप्लिकेशन है वन टू एंड थ्री ब्रैकेट्स के लिए। फिर आता है यहाँ पर माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यही है जो यहाँ पर माइनस साइन है, और इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज किया है और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आएगा, ये करके रफली देख सकते हो फिर यहाँ पर लिखने का। फिर इसके बाद प्लस ये प्लस साइन यहाँ का, ये प्लस साइन यही प्लस साइन है और स्क्वायर ऑफ द लास्ट ब्रैकेट इज दिस, यहाँ से स्क्वायर करोगे ये टर्म मिलेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक, चलो अगर यहाँ तक क्लियर है
तो अब केवल थोड़ा सा ही और यहाँ समझने की बात है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4, अब इसका हम लोग अपोजिट साइन पकड़ेंगे कि ए क्या कहीं पर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4 बनेगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4x कहीं पर है, नहीं है। बी रेज टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो बी रेज टू 4 ये जो टर्म्स हैं अपने पास, ये टर्म को यहाँ पर पॉजिटिव है और ये पूरे ब्रैकेट को ओपन करोगे, पूरे ब्रैकेट को ओपन करते हुए देखोगे, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव है बी रेज टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो बी रेज टू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो काफ़ी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आते हैं ओनली 3, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। कहीं पर पॉजिटिव है तो कहीं पर नेगेटिव है, कहीं वन टाइम है, कहीं ट्वाइस है, उनको सबको ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाओगे और मिल जाएगा आंसर। जैसे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे जो अगला स्टेप आएगा कहीं ना कहीं प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा ही, कहाँ पर मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो ये माइनस साइन है और इसके बाद ब्रैकेट यूज हुआ है, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस है और इन दोनों को ऐड करके -2 मिला है, ये -2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म। तो ऐसे ही मेनी टर्म कैंसिल होते जाएंगे, वो चेक करोगे सब मिल जाएगा। इन केस अगर ये स्टेप में किसी स्टूडेंट को डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। So therefore y raised to 4 plus y cube d2y upon dx2 equals, write the remaining term here। कैंसिल करने के बाद जो भी टर्म बचते हैं वो टर्म यहाँ लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4x प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज टू 4x। So we say that in the remaining term a square b square a square b square a square b square in all the three, so taking a square b square common from this step, so after taking a square b square common, it is equal to a square b square into cos raised to 4x plus 2 sin square x cos square x plus sin raised to 4x। तो देखो if we take a square b square common we get in the bracket cos raised to 4x plus 2 sin square x into cos square x plus sin raised to 4x, तो ये टर्म हमें मिला। नाउ सी दिस ब्रैकेट वेरी केयरफुली, देखो cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर मीन्स इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। So therefore y raised to 4 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। y raised to 4 प्लस वाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, वाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, मैंने पहले भी बताया था यहाँ कॉमन करना है हम लोगों को। तो टेकिंग y क्यूब कॉमन इन दीज टू टर्म्स वी गेट y क्यूब, देखो y क्यूब कॉमन, तो y क्यूब रिमेनिंग टर्म इन द ब्रैकेट y प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ब्रैकेट क्लोज्ड equals a square b square into cos square x plus sin square x the whole square. Now you know very well from the identity cos square x plus sin square x is 1. So a square b square as it is here. So y therefore y cube into y plus d2y upon dx2 equal a square b square into square of 1, because cos square x plus sin square x is 1 and 1 square is 1, 1 ही रहता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओनली। नाउ taking y cube on the right hand side, so therefore y plus d2y upon dx2 y plus d2y upon dx2 equal a square b square upon y cube, hence proof। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचने का कि दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंदी, ओनली 2 स्टेप्स
ओनली 2 स्टेप्स आर लेंथी बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। और इसमें जो भी एडजस्टमेंट है उसको भी ध्यान में रखना है, वो एडजस्टमेंट अपने बहुत ही काम आने वाला है फॉर द अदर क्वेश्चन आल्सो। सो दिस रिजल्ट y प्लस d2y अपॉन dx2 इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ये प्रूफ हो गया। Now see its second question. If log of y equal to log of sin x minus x square, so that d2y upon dx2 plus 4x into dy by dx plus 4x square plus 3 into y equal to 0 मीन्स इस क्वेश्चन में भी हमें log एंड sin x ये एलिमिनेट कर लेना है और अपने आंसर में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वेरिएबल टर्म्स होने चाहिए। हमें ट्रिगो टर्म नहीं चाहिए और लॉग टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, जो प्रूफ लाना है यहाँ पर। तो चलो नाउ लेट अस वी स्टार्ट हियर। फॉर द प्रूफ, सिंस log y equal to log of sin x minus x square, this is your question। देखो log of y equal to log of sin x minus x square, this is your question। So differentiating with respect to x, what is derivative of log of y? तो derivative of log of y equal to, यहाँ से देखो derivative of log y equal to 1 upon y into dy by dx equals derivative of log sin x 1 upon sin x into derivative of sin x is cos x, means it is cos x upon sin x, and derivative of x square is 2x minus sin as it is। So therefore 1 upon y into dy by dx equal 1 upon sin x into cos of x minus 2x। ये रहा अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया तो क्या मिला, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2x। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय y, तो ये y यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स वी गेट dy अपॉन dx इक्वल y इंटू दिस इज cos अपॉन sin, तो cos x अपॉन sin x becomes cot x, so this will be y into cot x minus 2x into y, that is 2xy, and let it be equation first। तो हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल्स y इंटू कॉट एक्स माइनस 2xy, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx of dy by dx becomes second derivative d2y upon dx2 equals y into cot x means u into v formula and minus 2x into y again u into v formula। तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल फॉर बोथ द टर्म्स, y into cot x के लिए भी और 2x into y के लिए भी, दोनों में हम लोग u into v की फार्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये टर्म का एक्सपेंशन क्या होता है। y as it is derivative of cot x minus cosec square x plus cot x as it is into derivative of y is dy by dx। तो ये रहा अपना u into v फॉर द फर्स्ट टर्म, minus 2x into d by dx of y, that is dy upon dx, minus 2y into derivative of x is 1, तो minus 2y into 1 that is minus 2y, तो यहाँ पर सिर्फ minus 2y ही दिखेगा, ठीक है, minus 2y लिख दो यहाँ पर। ये हो गया u into v फॉर द सेकंड टर्म। देखो बीच में प्लस साइन आता है लेकिन यहाँ इसके बिफोर दिस माइनस है, तो हमने ब्रैकेट को ओपन ही लिखा है पूरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन। फिर से देख लो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाई 2x डिवाई बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 2y इंटू 1 इज 2y ओनली। ओके, देयरफॉर d2y अपॉन dx2 इक्वल्स, अब यहाँ देखो y इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो y इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, माइनस वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस वाई को हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, माइनस वाई दिस। अब इसके बाद एक कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स हैज एन आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 एज इट इज यहाँ पर मैंने रखा, देखो 1 प्लस, अब ये बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ये है वैल्यू ऑफ कॉट एक्स, दिस इज दिस ब्रैकेट
इज वैल्यू ऑफ कॉट एक्स फ्रॉम हियर। ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई अपॉन वाई, यही आता है वैल्यू यहाँ पर। क्लियर? यही स्टेप था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई और इक्वल टू वाई काट एक्स होगा। तो ये कैसे लिखना है उसको मैं बता देता हूँ, नोट कर लो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू वाई काट एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई मीन्स वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका वाई कट हो जाएगा क्योंकि वाई से डिवाइड करोगे उसको। यहाँ क्या आएगा, वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन। ये कहाँ से लिया गया, इक्वेशन वन से कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो अपने को मिलेगा वैल्यू ऑफ कॉट एक्स इज वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स। तो हाँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, देखो वाई इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस वाई, बट कोसेक स्क्वायर एक्स इज वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है कॉट एक्स का वैल्यू है, होल स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगी। तो वन प्लस वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स द होल स्क्वायर, ये है कॉट स्क्वायर कॉट एक्स का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। प्लस एज इट इज कॉट एक्स, फिर से कॉट एक्स आया, अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट एक्स into dy by dx as it is, minus 2x divided by dx here, minus 2y here। बाकी चेंजेस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमने क्या किया फिर से देख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स इज वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन, एंड हियर प्लस कॉट एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन into dy by dx minus 2x divided by dx here, minus 2y here। now जस्ट ओपन द ब्रैकेट मीन्स यहाँ पर क्या करोगे, वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला अप्लाई करोगे और माइनस वाई का मल्टीप्लाई भी करना है। तो दोनों एक साथ पॉसिबल है, कर सकते हो। तो इट इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वन, माइनस वाई माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म अपने को मिलता है वन अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, लेकिन माइनस वाई का मल्टीप्लाई भी है, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, वन टाइम वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, माइनस टू ए बी टर्म लिया, टू टू जा फोर एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो और माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करोगे तो फिर से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, माइनस फोर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स रिमेनिंग टर्म, प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई। तो हमने क्या किया है, इसको ये ओपन करना है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से पहले एक्सपेंड करो ऑन रफ पेपर, वन प्लस दे से पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर माइनस वाई से ईच मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हमारे आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, प्लस वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, माइनस टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, अब यहाँ पर अगला टर्म, सॉरी ये अगला टर्म है प्लस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हियर प्लस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस टू वाई। Now see, this is plus 2x into dy by dx, plus 2x into dy by dx here, minus 2x into dy by dx, minus 2, this is 2, minus 2x dy by dx, minus 2y। अब देखो यहाँ पर plus 2x dy by dx and minus 2x dy by dx get cancelled, and here minus 1 upon y square
minus 1 upon y square, sorry, minus 1 upon y divided by dx whole square plus 1 upon y divided by dx whole square get cancelled. These two terms are cancelled and these two are cancelled. So what will be the remaining term? Remaining term will be minus y into minus 2y becomes minus 3y, and minus 4x into dy by dx here, minus 4x into dy by dx minus 4x squared y, minus 4x squared y. These are the remaining terms. Now we get d2y upon dx2 plus 4x divided by dx, taking minus 4x divided by dx on the left hand side, plus 4x divided by dx plus 4x square y plus 3y equal to 0. So rearranging all the terms in the left hand side and equating to 0. Now we get d2y upon dx2 plus 4x divided by dx. So what is common in these two terms? We see that y common. So taking y common, we get 4x square plus 3 into y equal to 0. So therefore d2y upon dx2 plus 4x into dy by dx plus 4x square plus 3 into y equal to 0, hence proved. ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं. और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है थर्ड क्वेश्चन, तो इसको क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करना है वो कंफर्म करते हैं. Now see question number third. If x equal to a cos theta, y equal to b sin theta, so that a square into y into d2y upon dx2 plus dy by dx whole square bracket closed plus b square equal to 0. तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, मीन्स अगेन वी एलिमिनेट साइन थीटा एंड कॉस थीटा. वी हैव टू प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव में प्रूफ करने के लिए हमें ये टर्म को वापस कंप्लीट करना है. तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन. इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा, सो दैट ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. फॉर द प्रूफ, since x equal to a cos theta and y equal to b sin theta, since x equal to a cos theta and y equal to b sin theta, ये दिया है, which is parametric equation. तो both are parametric equations here in terms of theta. तो हमें क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कंप्लीट करने के लिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ईच. तो अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ x dx upon d theta equals d by d theta of a cos theta minus a into sin theta, and derivative of y dy upon d theta, derivative of b sin theta is b cos theta. Since dy upon dx equal dy upon d theta upon dx upon d theta, substituting the value of dy upon d theta in the numerator, which is b cos theta, so b cos theta upon value of dx upon d theta from here minus a sin theta minus a sin theta. Here b and a both are constant, minus sign here, we write here minus b by a cos of theta upon sin theta becomes cot of theta. So minus b by a into cot theta. This is the value of dy upon dx. So this is first order derivative. Now differentiating it with respect to x. ये ध्यान देना है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए x एंड y बोथ इक्वेशंस को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया. क्या किया है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो वी गेट dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स माइनस ए साइन थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स b cos थीटा, and dy upon dx equals dy upon d theta upon dx upon d theta. So we get dy upon dx equal to minus b by a cot theta. Now differentiating with respect to x. So derivative of dy by dx with respect to x d2y upon dx2 equals. अब यहाँ पर ध्यान देना है कि this is minus b by a. तो minus b by a is constant, we write as it is. D by
डी एक्स ऑफ कॉट थीटा, यहाँ पर क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा इज नॉट पॉसिबल, तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है कि डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। Therefore, second order derivative becomes d2y upon dx2 equals minus b by a into minus cosec square theta into d theta by dx, जैसा हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन में पहले भी एडजस्ट करते आ रहे हैं। नाउ d2y upon dx2 इक्वल्स देखो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो b बाई ए इंटू व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा अभी हमने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला हियर इनटू, अब ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, व्हाट इज डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा, सो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू, अब ये टर्म को देखो कि माइनस ए हियर एंड दिस इज बी बाई ए, तो बी बाई ए इंटू माइनस ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 एज इट इज प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा ढूंढते हैं। यहाँ से देखो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। क्लियर? तो माइनस ए अपॉन बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस ए अपॉन बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ये ब्रैकेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखी गई। क्लियर? माइनस ए अपॉन बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए साइन थीटा। तो हमने ए को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो अपना जो क्वेश्चन था साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, ये y अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा, ये वैल्यू है, तो y अपॉन बी साइन इक्वल टू साइन थीटा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमने माइनस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, राइट, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन बी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, तो 1 अपॉन y अपॉन बी, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ अब ये देखो दिस इज y अपॉन बी, यहीं से b अपॉन y हो जाएगा, b गोज टू न्यूमरेटर, 1 अपॉन वाई अपॉन बी, तो b गोज टू न्यूमरेटर b अपॉन वाई, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो b यहाँ ऊपर ऊपर आया तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। फिर से देख लो b बाई ए स्क्वायर सिंपली कह सकते हैं माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन वाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस स्क्वायर ऑफ नेगेटिव साइन इज फर्स्ट, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देयरफॉर d2y upon dx2 इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई इंटू 1 दिस वन, माइनस इसका मल्टीप्लाई आगे भी करते हैं, तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर ओनली। क्लियर? ठीक है, तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम देखो ए स्क्वायर वाई ही एलसीएम है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई ए स्क्वायर वाई, तो देयरफॉर ए स्क्वायर वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई गेट कैंसल्ड, माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई गेट कैंसल्ड ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन में क्या किया अभी, आफ्टर दिस स्टेप मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर वाई ऑन बोथ साइड्स, ये लिख सकते हो। तो देयरफॉर ए स्क्वायर वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद ए स्क्वायर वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस
ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, देखो ये सभी टर्म लेफ्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। जब सभी टर्म लेफ्ट में आकर के पॉजिटिव हो गए तो अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ ये सभी टर्म लेफ्ट में आकर के पॉजिटिव हो गए तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेते हैं दोनों में, टेकिंग ए स्क्वायर कॉमन। ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू वाई, सिर्फ यहाँ पर वाई रिमेनिंग होगा, वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट में आ रहा है, सभी टर्म आ गए हैं, तो प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर ए स्क्वायर into rectangular bracket y d2y upon dx2 plus dy by dx whole square rectangular bracket closed plus b square equal to 0, hence proved। ये अपना क्वेश्चन थर्ड वन प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से काफ़ी डिफिकल्टीज क्लियर हो जाएंगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमें क्या प्रूव करने के लिए मिलता है। फोर्थ वन, इफ y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x देन शो दैट x2 x स्क्वायर y2 प्लस x इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, इस टाइप के अगर डेरिवेटिव्स, इस टाइप के इक्वेशंस आते हैं उनको कंटिन्यूसली ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बाय सम अरेंजमेंट्स। वो सम अरेंजमेंट्स मैं बताऊंगा क्या है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है उसको क्लियर करो। एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मीनिंग है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, तो एक्स इज वेरिएबल, वाई वन की मीनिंग है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वन की मीनिंग क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो समटाइम्स इनको हम लोग वाई डबल डैश भी लिखते हैं, यहाँ पर डैश डबल डैश आते हैं और इसको वाई डैश, तो वाई डैश या वाई वन का मीनिंग है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई टू या वाई डबल डैश का मीनिंग होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, मीन्स सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, टू टाइप्स के यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव्स भी आते हैं जो सिंबल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो उनके सिंबॉलिक फॉर्म में समटाइम डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, वाई डबल डैश, वाई टू, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डैश और वाई वन। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ किसी भी ऑर्डर में लिख करके करते हैं, लेकिन फाइनल आंसर अपना इसी में लिखना है, ठीक है। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रूफ। y equal to, since y equal to a cos of log x plus b sin of log x, let it be equation first. Differentiating with respect to x, derivative of y divided by dx equals a is constant. So derivative of cos of log x, derivative of cos of log x is minus sin of log x. So this will be minus a into sin of log x into d by dx of log x is 1 upon x. So entire upon x. So therefore dy by dx equal to minus a sin of log x upon x plus b derivative of sin of log x, b into cos of log x, derivative of sin of log x is cos of log x into dy by dx of log x by chain rule 1 upon x, that is b cos log x upon x। तो ये टर्म हो गए अपने डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स बाई चेन रूल, क्योंकि कॉस ऑफ लॉग एक्स हमारा फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन जब यहाँ लॉग एक्स भी है तो बाई कंपोजिट फंक्शन और बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो टोटल अरेंज करके लिखोगे माइनस ए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई एक्स on both sides, so therefore x into dy by dx, उससे अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा, x x कैंसल्ड, x x कैंसल्ड, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं रह जाएगा। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये सिंपल इक्वेशंस आ गए यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन एंड एक सेकंड, एक डेरिवेटिव का सेकंड इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, here x into dy by dx, so using product rule u into v, so x into d by dx of dy by dx d2y upon dx2
प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें न करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स इज माइनस ए इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, फिर से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा 1 बाई एक्स दैट इज अपॉन एक्स माइनस, अब देखो कॉस टर्म यहाँ पर है तो डेरिवेटिव ऑफ b इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो b एज इट इज बट डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स इज माइनस साइन लॉग एक्स, दिस इज द रीजन प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, तो b माइनस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, मीन्स दिस अपॉन एक्स। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एक्स यहाँ नहीं रखना है तो हम लोग वापस से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों x कट हो जाएंगे और यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन कॉमन इन दिस टू टर्म्स, माइनस कॉमन a कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b साइन ऑफ लॉग एक्स, ये दोनों टर्म यहाँ पर वापस आ गए और ये वही टर्म है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पर देखो a cos log x plus b sin log x, this is equation number 1 and this value is y। तो हम लोग यहाँ माइनस साइन को कॉमन कर लिया और x ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो माइनस दिस इज इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y, तो माइनस y मिल जाएगा यहाँ पर, और वो माइनस y को हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, क्योंकि मैंने देखो पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डी टू आई अपॉन डी एक्स टू ही वाई टू है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स ही क्या है वाई वन, प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस यहाँ पर हमारा माइनस वाई हो चुका है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाई की वैल्यू है, तो माइनस वाई को हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफर किए प्लस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड। और हमने ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वाई टू इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एंड वाई वन इज डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों की मीनिंग सेम है, यही फर्स्ट ऑर्डर है और वाई टू सेकेंड ऑर्डर है। क्लियर, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 of question number 7. So what is question number 5? If y equal to a into e raised to mx plus b into e raised to nx, so that y2 minus bracket m plus n bracket closed into y1 plus mn into y equal to 0. So our question here exponential and variables x and y, constant terms a, b, m and n. Here a, b and m are constants, वेरिएबल है x, y यहाँ पर और एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया है। तो फॉर द प्रूफ सिंस y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस b इंटू ई रेज टू एन एक्स, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, a इज कांस्टेंट तो हम लोग a को पहले लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एम एक्स, ये ध्यान दो ई रेज टू एम एक्स इज ई रेज टू एम एक्स बट इट इज नॉट एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स क्या आएगा इंटू एम, तो इसके लिए ये रीअरेंज करके लिखोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू ई रेज टू एम एक्स इज एम इंटू ए ई रेज टू एम एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी ई रेज टू एन एक्स, तो बी कांस्टेंट है एज इट इज रख लिया पहले, डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स ई रेज टू एन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एन एक्स इज ई रेज टू एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स इज एन, जो एन का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, तो इसको रीअरेंज करके सब लिख दिया गया, क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एम इंटू ए ई रेज टू एम एक्स प्लस एन इंटू बी ई रेज टू एन एक्स। अब क्या करते हैं, देखो हमारे प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स नहीं चाहिए और कांस्टेंट लेटर ए बी भी नहीं चाहिए, मीन्स हमें उनको एलिमिनेट करते जाना है, तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले
यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से बी ई रेज टू एन एक्स की वैल्यू क्या है, देखो या तो ए की फाइंड करो इसकी, या तो फिर बी की, किसी एक की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से बी ई रेज टू एन एक्स को एलिमिनेट करते हैं। तो बी ई रेज टू एन एक्स इज वाई माइनस ए ई रेज टू एम एक्स, करेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए यहाँ दिया गया फ्रॉम 1। तो दिस इज इक्वल टू एम ए रेज टू एम ए इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस एन बी ई रेज टू एन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस ए ई रेज टू एम एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू ए ई रेज टू एम एक्स प्लस n into y ny minus n a e raised to mx. So we see that e raised to mx, a e raised to mx and a e raised to mx is common in these two terms, first और last में या first और third में. So therefore dy by dx equals m minus n, देखो a e raised to mx कॉमन करोगे दोनों में, तो माइनस n इंटू a इंटू e raised to mx प्लस n y, let it be equation number 2. Differentiating with respect to x, so d2y upon dx2 equal m minus n इंटू, अब यहाँ पर क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है तो m माइनस एन इंटू ए, ये दोनों कांस्टेंट है। फिर से डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एम एक्स इज ई रेज टू एम एक्स इंटू एम, तो उसको हमने लिखा m इंटू ए ई रेज टू एम एक्स, क्योंकि कांस्टेंट सब एक साइड हो जाएंगे। जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल एम माइनस एन इंटू एम ए ई रेज टू एम एक्स, ये है डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। देखो ये तो कांस्टेंट है यहाँ तक, सिर्फ इसका डेरिवेटिव क्या है, m इंटू ई रेज टू एम एक्स, यहाँ पर m इंटू ई रेज टू एम एक्स, बाकी सब कांस्टेंट प्रीवियस टर्म से डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, प्लस n एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद ये टर्म हमारा है यहाँ पर और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम किया हुआ है। तो अब ये अगर हम लोग देखें कि m माइनस एन इंटू ए ई रेज टू एम एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m माइनस एन इंटू ए ई रेज टू एम एक्स की वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई, इतने की m माइनस एन इंटू ए ई रेज टू एम एक्स, तो सिर्फ यहाँ m बचेगा, राइट, m को छोड़कर बाकी सभी की सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई। तो देयर फोर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स m इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई, देखो m यहाँ से रिमेनिंग टर्म है और इनका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, n इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 और y1 टर्म को ओपन कर लेते हैं कि मतलब x1 और y1 हमें कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज वॉट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज वाई टू, एम वाई वन यही है वाई वन, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो m इंटू वाई वन माइनस एम एन वाई प्लस एन डिवाइड बाई डी एक्स क्या है वाई वन। तो हमने अभी पूरे इक्वेशन को y1 और y2 में कन्वर्ट कर लिया, तो वी गेट y2 इक्वल्स एम वाई वन माइनस एम एन वाई प्लस एन वाई वन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एम वाई वन प्लस एन वाई वन, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, वाई वन, तो देयर फोर वाई टू इक्वल एम प्लस एन वाई वन कॉमन इन दोनों टर्म में, फर्स्ट और लास्ट में वाई वन को कॉमन कर लिए माइनस एम एन वाई। Now taking all the terms in the left hand side, so therefore y2 minus m plus n into y1 plus mny equal to 0, hence proved। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सभी सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और मिसलेनियस एक्सरसाइज नियरली इक्वल कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर इस एक्सरसाइज में किसी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, बट यू हैव टू राइट योर फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे भी मिसलेनियस का मान लो कि क्वेश्चन नंबर 7 का कोई भी डाउट है तो वहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 सब क्वेश्चन फर्स्ट इतना मेंशन करना, डू नॉट राइट द क्वेश्चन, so I'll explain it again, so you can ask your any doubt in the comment box। और जो स्टूडेंट JEE
मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मिसलेनियस एक्सरसाइज एट लीस्ट ट्वाइस सॉल्व करना चाहिए, या सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सभी जेई मेंस एंड सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और इसके साथ अपना मिसलेनियस और डिफरेंशिएशन चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। इनको जो भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.